Hello and welcome. Welcome to learning session number 5 of chapter number 9 of Science 1, which is carbon compounds. Okay, so far in this chapter, we have seen ionic compounds which have ionic bonds. What happens in ionic bonds? There is a permanent transfer of an electron from one atom to another atom. We have seen covalent bonds where instead of permanently transferring the electron from one atom to another, they're going to share their electrons between them. Then we had seen dot structure and line structure. In dot structure, you show the bonding between two atoms using dots, right? You show electrons by showing dots and sometimes by crosses so that you can differentiate between electrons of different atoms. And in line structure, you show the sharing of two electrons by just a line between the two atoms. Then we had seen catenation. What is catenation? The ability of carbon atom to form stable covalent bonds with itself as well as some other elements so that it can make large chains of molecules. Then we had seen isomerism. What is isomerism? Same chemical formula but different structural formula. Okay, so the formula is same. Say for example C7H14, but there are different ways in which that molecule can be arranged, right? So that's called as isomerism. Then we had seen hydrocarbons and its types: alkanes, alkenes, alkynes. We had seen then carbon compounds based on arrangement of carbon atoms. So if they are in straight line, all the carbon atoms, we call it as straight chain hydrocarbon. If in between the chains, if there are branches coming out, then you will call it as branched chain carbon compounds. And finally, if the carbon atoms are forming a circle, then we call it as a cyclic carbon compound. Then we had seen functional groups. For example, we had seen halogens, aldehydes, ketones, amines, so on and so forth. We had seen in carbon compounds, right? And we had seen what are homologous series. So in homologous series, the functional group is same, but what is changing is the length of carbon chain. So say for example, there are three carbons in the first. One of the members of a homologous series has three carbon atoms. The next one will have four carbon atoms. The next will have five carbon atoms. But the functional group which is attached will remain the same. That is that's known as homologous series. And we had seen the various characteristics, right? That when you move down, always a methylene group is added. Atomic mass is increased by 14 atomic mass units, so on and so forth. So these characteristics we had seen for homologous series. Also, what we had seen was the basic hydrocarbon is alkanes, alkenes, and alkynes. Okay, what is basic hydrocarbons that we had seen using the analogy of pizza, right? Pizza में basic क्या होता है? The base, the sauce and the cheese. फिर बाद में उस पे अलग अलग टॉपिंग्स डाल के तुम लोग को अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे. Similarly, in carbon compounds, the base is the hydrocarbon, alkane, alkene, alkyne, और फिर उस पे अलग अलग functional groups add करके अलग अलग functions मिलेंगे, इसलिए उसको functional group बोलते हैं, right? Great. So that's all we have seen so far. Today we're going to see IUPAC nomenclature. Okay, so इसका एक full form है that we are going to see in today's learning session, but this is either called as IUPAC. सारे letters को एक एक बोल दो, या फिर short form में, even if you want to make it even shorter to say it, even simpler to say it, some people call it as IUPAC. Okay, I'm going to use IUPAC. IUPAC nomenclature. Nomenclature ये word किससे मिलता जुलता है? It is something related to the name. Okay, so nomen is something related to name. Nomenclature यानी नाम देना, नामकरण. Okay, so IUPAC nomenclature क्या है? That we are going to see today. Okay, there are two objectives for today. The first one is students will be able to write names of carbon compounds using IUPAC nomenclature. And students, एक बार तुम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख के IUPAC नेम्स लिखने आ गया, उसका उल्टा भी करने आना चाहिए. What's its ulta? Students will be able to write structural formulae for carbon compounds having IUPAC names. Okay, so अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया, उसका IUPAC नेम लिखना आना चाहिए. अगर IUPAC नेम दे दिया, तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए. Both of them you all should know. Okay, great. Just wanted to quickly reiterate and remind you all that this is the basic table that you have to by heart to understand the entire chapter. Okay, what does this tell you? In the first column, we have alkanes, which has only single bonds. Second one has alkenes, which has at least one double bond. The third one is alkyne, which has at least one triple bond. And
whatever compound, whatever hydrocarbon you have, it will have two parts. The first part will tell you how many carbon atoms are there. Okay, तो अगर एक कार्बन एटम तो meth, दो कार्बन एटम तो eth, तीन कार्बन एटम तो prop, फोर कार्बन एटम्स तो ब्यूट, so on and so forth. So मुझे पहले 10 एल्केन्स बहुत अच्छे से याद है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. तो पहले 10 याद होने चाहिए, और उन 10 से क्या पता चलता है कि कितने कार्बन एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, उससे तुम्हारा बेसिक नेम डिसाइड होता है. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बाय हार्ट दिस, सो दैट अगर मैंने बोला कि किसी कार्बन कंपाउंड में 8 कार्बन एटम्स है, सो यू शुड नो कि उसका नाम में कहीं ना कहीं ऑक्ट आने वाला है. ओके, एंड हाउ डू यू डिसाइड वेदर इट्स अल्केन, एल्कीन और एल्काइन? यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. ओके, सो अगर कार्बन 4 है और उसका डबल हाइड्रोजन है तो CN2N हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन डबल हो गया. डबल करके दो एक्स्ट्रा है तो एल्केन हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. कार्बन एटम्स अगर समझो 7 है एंड हाइड्रोजन आर 12, तो 7 का डबल 14, 14 minus 2 is 12, right? So 2 minus करना पड़ा 2n में से, so it is alkyne. So you can remember the formula and all this will come by itself. The most important are the first two columns, and the next important thing to know is अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो alkene होगा, एक भी डबल बॉन्ड होगा तो alkene होगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो alkyne होगा. That's all you need to know from this table. Okay. Also we had seen functional groups. We had seen halogen जिसमें क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. We had seen alcohol जिसमें OH होता है, एल्डिहाइड C कार्बन एटम, उसके राइट साइड में हाइड्रोजन, ऊपर एक ऑक्सीजन एटम. कीटोन में बीच में होगा. ओके, सो एल्डिहाइड जनरली एंड में डाल सकता, एंड में एल्डिहाइड विल जनरली बी एट द एंड. ओके, एंड्स ऑफ द चेन, बट कीटोन को सेंटर में ही आना पड़ेगा. ओके, कीटोन हैज टू बी इन द सेंटर, क्योंकि कीटोन में लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है. ओके, सो इट विल ऑलवेज बी इन बिटवीन टू कार्बन एटम. सो कीटोन हमेशा बीच में आएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, देन ईथर एस्टर यू नीड नॉट वरी अबाउट, उस पे हार्डली कभी कोई क्वेश्चंस आते हैं. सो ईथर एस्टर यू कैन forget. Amines are NH2. Okay, N. Nitrogen needs 3 more electrons, right? Nitrogen के last orbit में there are 5 electrons. It needs 3 more electrons to make it 8. So दो already hydrogen से मिल रहे हैं, उसमें से एक जो है वो कार्बन एटम से मिल जाएगा, जिस कार्बन एटम को अटैच हो रहा है. So these are the various functional groups that we had seen last time. Okay. So there's a use your brain power given on page number 121. Try to solve it by yourself. Okay, draw all possible structural formula having molecular formula C6H14. C6H14 क्या है? C6H14, 6 का डबल 12, 12 plus 2 14, यानी एल्केन है ये. ओके, कौन सा एल्केन है? C6 है, 6 यानी हेक्स, तो हेक्सेन है ये. ओके, सो दिस इज हेक्सेन. सो हेक्सेन कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, बॉन्डिंग्स कैसा होगा, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं you will have to draw. Okay, let me see how many different possible structures you all come up with. I'll give you all 5 seconds for you to pause the video and complete this activity. Okay, I hope you have drawn at least 2 to 3 possible structural formula for hexane. Okay, so the first one, which I hope everyone has already drawn in their notebooks, is this. Okay, हेक्सेन यानी 6 कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, और फिर बाद में हाइड्रोजन ऐड करते हो सब जगह पे. एंड तुम लोग कैसे भी डिजाइन की तरह हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते. ओके, डिजाइन में अच्छा दिख रहा है तो हाइड्रोजन उतने ऐड कर दिए. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वैलेंसी. कार्बन को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो ये कार्बन देखो, लेफ्ट साइड से इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले कार्बन एटम से मिल गया, राइट? सो ये कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सिमिलरली ये देखो, ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे से 1 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट से 1 इलेक्ट्रॉन, राइट से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. सिमिलरली ऑल द ऑक्टेट्स ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर कंप्लीट, और हाइड्रोजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है जो वो कार्बन से ले रहा है. ओके, सो ऐसा डिजाइन नहीं बना रहे हम लोग, सम थॉट टू इट. ओके, जब भी तुम लोग ये बनाते हो, C6H14 यहाँ पे जो बना है, कार्बन एटम को, हर कार्बन एटम को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने चाहिए, और हर हाइड्रोजन एटम को 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Okay, so this was hexane. We have seen hexane so many times. Okay,
सो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यू टेक वन ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम हियर, यहां से निकाल के तुम लोग यहाँ पे अटैच कर लो। ओके, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई जस्ट सेड। यहां से कार्बन एटम निकाल के तुम लोग यहाँ पे नीचे अटैच कर दो कार्बन एटम को। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, सो दैट्स अनदर वे। यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम्स है एंड 14 हाइड्रोजन एटम्स है, एंड ऑल ऑफ देयर ऑक्टेट्स एंड ड्यूप्लेट्स आर कंप्लीट। सारे कार्बन एटम्स को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, सारे हाइड्रोजन को 2 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। यू कैन चेक हियर। ओके, सो दैट्स द सेकंड वे। थर्ड वे, थर्ड वे व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे डालने के बजाय तुम लोग थर्ड कार्बन एटम पे डाल सकते हो इस CH3 को। ये CH3 है, राइट? सो इस CH3 को सेकंड कार्बन एटम की जगह पे थर्ड कार्बन एटम पे डाल दो, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। सिमिलरली देयर इज अनदर वे, दिस, यानी यहां से एक कार्बन एटम उठा के, यानी ये जो CH3 है पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे डाल दो, और यहाँ का एक CH3 पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे डाल दो। ओके, सो देन यू विल गेट दिस, एंड देयर इज वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर which is this. Okay, so दोनों कार्बन एटम्स को, सॉरी दोनों CH3 को, यहाँ पे जो नीचे CH3 है, यहाँ पे ऊपर जो CH3 है, दोनों को सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर लगा दो। सो अगेन इन सब में अगेन हम लोग डिजाइन नहीं बना रहे रैंडमली, जैसे अच्छा दिख रहा है वैसे डिजाइन नहीं बना रहे। कीप दैट इन माइंड। ओके, हम लोग काफी अच्छे से और काफी सोच समझ के वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। कार्बन एटम का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का भी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है, तो इन दो रूल्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बना रहे हैं। ओके, सो देयर वर 5 different possible structural formulae for C6H14. Okay, so इनको क्या बोलेंगे, we'll call these as isomers. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म, राइट? सेम molecular structure, sorry, same molecular formula but different molecular structure, राइट? फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, और स्ट्रक्चर अलग होगा तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाएंगे। So these are all isomers of C6H14. Do you see a problem here? क्या प्रॉब्लम हो सकता है इससे? ओके, सो से फॉर एग्जांपल आई एम अ केमिस्ट। ओके, आई एम अ साइंटिस्ट हु स्टडीज केमिस्ट्री, and I took this particular molecule and I did a reaction, I made some discovery and I published it in a research paper. मैंने research paper में publish कर दिया। okay, so उस research paper को जब मैं publish करता हूँ, it can be accessed by scientists all over the world, right? scientists का काम ही यही होता है that you do research and you publish it in a scientific journal. So when I publish it in my scientific journal, what will I write the name of this molecule? I will write as C6H14, right? So मैंने इस molecule का नाम लिख दिया. Now in France, say for example, there is some other scientist who is reading my research work. Okay, now when that person is reading my research work and he or she wants to further investigate this particular reaction that I have studied, that person might think कि अच्छा ये C6H14 लिया, right, रोहन ने? So that could be this. ये C6H14 है, राइट? मैंने कौन सा लिया था ये, और उसने कौन सा समझ लिया ये वाला, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम when scientists are communicating with each other, they are sharing their resources, they are sharing their research with each other, और उनको एक दूसरे के रिसर्च पे और रिसर्च करना है, then यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज व्हेन आई राइट C6H14 उनको पता नहीं चलेगा इन पांचों में से कौन सा है, राइट? दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमेशा मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताऊं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर मैंने ड्रॉ किया मेरे रिसर्च पेपर में, तो फिर उनको पता चल जाएगा, राइट, कि हाँ इसमें ऐसा जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वही स्ट्रक्चर उन्होंने यूज किया था और उस पर ये रिसर्च पेपर बेस्ड है। बट बार बार ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट? इट विल बी लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू राइट दिस such a big molecule again and again, और ये तो काफी छोटा molecule है। okay, this looks like a big molecule but the actual research which happens उसमें there could be even thousand carbon atoms. So every time you can't draw, even one time you should not be drawing 1000 carbon atoms, right? क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा molecule हो जाएगा, वो एक पेज पे फिट भी नहीं होगा। So we have to find a way ताकि हम लोग इसको अच्छे से नाम दे सके, so that there's no confusion. okay, और इतने सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग नाम नहीं दे सकते। समझो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, इसको मैंने डब्ल्यू बोल दिया, इसको गामा बोल दिया, इसको ZW बोल दिया। सो इफ आई स्टार्ट गिविंग रैंडम नेम्स, तो इतने सारे नाम थोड़ी बाय हार्ट कर पाएंगे कोई। केमिस्ट आर गोइंग टू यूज दिस मॉलिक्यूल्स अगेन एंड अगेन, तो तुम लोग कुछ भी रैंडमली नाम दे दोगे अलग अलग नाम, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर साइंटिस्ट एंड केमिस्ट। ओके, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम came IUPAC. What is IUPAC? IUPAC is the short form for
इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में IUPAC बोलते हैं. ओके, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो लोग प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में काम करते हैं. सो दे पुट फॉर द नॉमेनक्लेचर सिस्टम. अगेन नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम. द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. तो उन्होंने नाम देने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स. ओके, सिर्फ कितने कार्बन एटम्स कितने हाइड्रोजन एटम्स इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उस पे भी डिपेंड करता है ये सिस्टम. ओके, एंड इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड are happy now because they have a good system, so that they don't have to remember so many names. They all have to do, all they have to do is remember the rules. एक बार rules by heart कर लिए तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स के वो लोग इजीली नेम्स बता सकते हैं. ओके, there is a provision in this system for giving unique name to all carbon compounds. अगर तुम लोग ने ये सिस्टम को यूज किया तो हर कार्बन कंपाउंड का अलग अलग नाम आएगा. ओके, उनका केमिकल फॉर्मूला भी अगर सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग होगा, सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नाम होंगे, यूनिक यानी अलग. Okay, so that's IUPAC nomenclature. Okay, so उसमें there are three parts. Whenever you give name using IUPAC nomenclature, there are three parts of that name. One is prefix. Prefix यानी नाम के पहले आना. Pre यानी पहले. Okay, prefix. Then the parent. Parent यानी the main important name, the main name. Okay, and suffix. Suffix यानी बाद में आना. Okay, pre यानी पहले, suffix यानी बाद में. And the most important part of the name is the parent name. Okay, so there are these three parts. So new table for you all to by heart. Okay, you'll need to by heart this new table now. In this table I have given functional group. So these are the various functional groups, and कहाँ किस functional group के लिए prefix लगेगा, किस functional group के लिए suffix लगेगा, और क्या prefix और suffix लगेगा, ये मैंने यहाँ पे second column में लिखा है. And this is the structure. Okay, so again you have to by heart this table. Do copy this table in your notebook and make sure you're by hearting this table. Again I would say अभी की अभी जब कॉपी कर रहे हो तुम लोग अपने नोटबुक पे, तभी के तभी बाय हार्ट कर लो. इफ यू बाय हार्ट इट राइट नाउ, द रिमेनिंग लर्निंग सेशन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. Or if you don't by heart it right now, when I'm discussing nomenclatures, you will always have to go back to your table कि अरे हाँ रोहन भैया ने कीटोन के लिए क्या बोला था, एल्डिहाइड के लिए क्या बोला था, and then you'll have to try to understand. उससे अच्छा अभी के अभी जब कॉपी कर रहे हो तब by heart कर लो. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video, copy the table and by heart this table. Till that time I'll drink some water. Okay. Okay, so structures we had already seen right in the last learning session. What you have to see is उसका नाम क्या होगा. Okay, prefix यानी पहले लगाना पड़ेगा, suffix यानी बाद में लगाना पड़ेगा. तो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का पहले लगाना पड़ता है, पेरेंट नेम के पहले आएगा नाम उनका, बाकी सबका सफिक्स है यानी पेरेंट नेम के बाद में आएगा उनका नाम. ओके, सो अगर अल्कोहल आ गया तो तुम लोग का सफिक्स क्या होगा? ओल. अल्कोहल का लास्ट 2 लेटर्स क्या है? OL, राइट? सो ओल आ जाएगा यहाँ पे. एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के फर्स्ट 2 लेटर्स क्या है? एल. सो एल आ जाएगा सफिक्स में. कीटोन, कीटोन के लास्ट 3 लेटर्स है ओन, सो सफिक्स में ओन ऐड हो जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी यहाँ पे थोड़ा अलग है. ओके, यहाँ पे कैसे तुम्हारे जो फंक्शनल ग्रुप के नाम है उसी में से 1-2 लेटर्स को ले लेते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स में, बट यहाँ पे लिक एसिड के जगह पे ओइक एसिड लेते हैं. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, instead of adding lic acid at the end, you have to add oic acid in the end. Okay, एमाइन का सेम है नाम एमाइन. एल्कीन का एंड में इन आ जाता है और आइन के एल्काइन के एंड में आइन आ जाता है. ओके, सो यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर्स भी बाय हार्ट होने चाहिए, प्रीफिक्स है सफिक्स है ये भी पता होना चाहिए, और कौन से लेटर्स ऐड करने हैं ये भी पता होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो let us see some examples. Okay, so यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है CH2CH2OH. अब यहाँ पे CH2 का क्या मतलब है? एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है. ओके, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, गिव मी अ मिनट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसा वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH3 है, राइट? तो CH3 को ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे C के बाजू में H3 लिख देते हैं. सिमिलर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 ऐसे ड्रॉ करने के बजाय यहाँ पे C के बाजू में H2 लिख देंगे. सिमिलरली यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बजाय यहाँ पे C के बाजू में H2 लिख देंगे. सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में CH3 है,
CH3 ऐसे ड्रॉ करने के बजाय यहाँ पे H3 लिख देंगे. ओके, दे आर जस्ट राइटिंग इट इन अ शॉर्टर फॉर्म. ओके, सो यस, यहाँ पे CH2 एंड देन OH, राइट. सो OH यानी क्या है, अल्कोहल है. सो उसके लिए OL ऐड हो जाता है. यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है. तो मीथेन इथेन, 2 कार्बन एटम्स के लिए इथेन होता है, तो पेरेंट नेम इथेन. सो पेरेंट नेम विल ऑलवेज बी either, mostly 99% it will be an alkane, okay, and sometimes it will be alkene or alkyne, but 99% of parent name will be some or the other alkene. Okay, इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट टेबल बाय हार्ट होना चाहिए. सो दस 2 कार्बन एटम्स यानी मीथेन इथेन. इथेन पेरेंट नेम हो गया. अल्कोहल इज OL, राइट, वी हैड सीन हियर. अल्कोहल के लिए क्या ऐड होता है, OL, एंड इट इज अ सफिक्स, तो एंड में ऐड होगा. सो E जो है, E को हटा दो एंड OL ऐड कर दो. सो इथेनॉल हो गया. सो दिस ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है इथेनॉल. नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन 1 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन यानी मीथेन इथेन. सो पेरेंट नेम मीथेन हो गया. फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन है. क्लोरीन के लिए क्या नाम ऐड करना पड़ता है, क्लोरो. इज इट अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, इट्स अ प्रीफिक्स, तो पहले ऐड होगा. सो इथेन के पहले क्लोरो ऐड कर लो, सो क्लोरो इथेन. सो इसका नाम है क्लोरो इथेन. सिमिलरली ब्रोमो इथेन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि उसका नाम प्रीफिक्स में आता है, ब्रोमो इथेन. नेक्स्ट, CHO. व्हाट इज CHO? CHO इज एल्डिहाइड, राइट. CHO यहाँ पे है CHO. तो अगेन यहाँ पे CHO को ऐसे लिखने के बजाय वो लोग शॉर्ट फॉर्म में CHO लिख देते हैं. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द एक्चुअल बॉन्डिंग्स, उसको शॉर्ट में CHO लिख देते हैं. ओके, सो CHO इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए क्या नाम ऐड होता है, एल ऐड हो जाता है. सो एल्डिहाइड के लिए एल ऐड हो जाएगा. पेरेंट नेम कितना, पेरेंट नेम क्या होगा, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम. सो 3 कार्बन एटम, तो मीथेन इथेन प्रोपेन. सो पेरेंट नेम प्रोपेन हो गया. और कौन सा नाम ऐड होने वाला है, एल. एल हमेशा पीछे ऐड होता है, सफिक्स में. एल इज सफिक्स में. सो प्रोपेन का ई हटा दो एंड एल ऐड कर दो. सो प्रोपनाल. ये क्या है, प्रोपनाल. So this was propanol. Now COOH. COOH is carboxylic acid. Okay, यहाँ पे देखो carboxylic acid is COOH. So instead of again drawing this entire thing short form में उसको COOH लिख देते हैं. Okay. So how many carbon atoms? 1, 2. यहाँ पे 1 carbon atom, यहाँ पे 2 carbon atoms. So there are 2 carbon atoms. So methane, ethane. Ethane is your parent name. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ये सफिक्स में लगता है, पीछे लग जाता है, बाद में लगता है. सो ई हटा दो, इथेन का ई हटा दो एंड ओइक एसिड ऐड कर दो. सो इथेनोइक एसिड इज दिस. नेक्स्ट, 1 कार्बन एटम यानी पेरेंट नेम हो जाएगा मीथेन. NH2 इज एमाइन. ओके, NH2 over here is amine. एमाइन के लिए अमाइन ही वर्ड ऐड होता है सफिक्स में यानी पीछे. सो मीथेन का ई हटा दो एंड अमाइन ऐड कर दो. सो मीथेनअमाइन. व्हाट इज दिस, मीथेनअमाइन. दिस इज मीथेनअमाइन. Last, how many carbon atoms? 1, 2, 3. 3 carbon atoms. So methane, ethane, propane. Parent name will be propane. What is this? CO. CO यानी क्या होता है? CO is ketone, right? CO. CO is ketone. So ketone है. कीटोन के लिए ONE ऐड होता है. ओके, यस, कीटोन के लिए ONE ऐड हो जाता है पीछे सफिक्स में. सो ओन ऐड कर दो. प्रोपेन का ई कट करके ओन ऐड कर दो. सो प्रोपेनॉन. So this is your propanol. So how many different IUPAC nomenclature names we have seen? Ethanol, chloroethane, bromoethane, propanol. This is not OL, okay? This is AL. तो O का A हो गया, A का O हो गया, तो तुम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा and your answer will become wrong. So you have to be very careful. यहाँ पे all और al जब तुम ऐड करते हो, clearly O दिखना चाहिए, clearly A दिखना चाहिए. Okay, if there's a confusion between O and A, you won't get the marks. So ethanol, propanol, ethanoic acid, methanamine, propanon. Okay, so these are all your IUPAC nomenclature names. Okay, all you have to remember is पहले parent name निकालो. Parent name will generally be an alkane. फिर देखो functional group क्या है और उस हिसाब से prefix या फिर suffix add कर लो. Okay, so these are your steps to build skills or your steps to write nomenclature for write the names of carbon compounds using IUPAC nomenclature. Okay, and I've just told you
पहले क्या करना है, पहले कौन सा एल्केन है चेक करो, 99% एल्केन ही होगा, एल्कीन या एल्काइन वेरी रेयरली दे आस्क, ओके। सो पेरेंट नेम हो जाएगा, फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आइडेंटिफाई करो, एंड देन यू ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स अकॉर्डिंग टू द functional group. Third point we'll ignore for now, and then fourth point में क्या है, write the final name of the compound. यहाँ पे तुम लोग का फाइनल नेम हो जाएगा सेकंड में, ओके। So third and fourth point you can ignore for now, and to understand the third and fourth point we'll see another example, okay. So assume my my molecule is this, okay, this is my molecule, और अभी मुझे इसका नाम लिखना है according to IUPAC rules. Right, so what is my first step? First step, I'll count the number of carbon atoms. So 1, 2, 3 and 4, 4 carbon atoms. So what is its parent name? Methane, ethane, propane, butane. So parent name होगा butane. फिर अभी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन, ओके। सो ब्रोमीन में प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगता है ब्रोमीन में, सो ब्रोमो ब्यूटेन, राइट, ब्रोमो ब्यूटेन विल बी इट्स नेम, ओके। सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, काफी इजी लग रहा है। नेक्स्ट, what if instead of putting my bromine on my the rightmost carbon मैंने सेकंड पे लगा दिया, या फिर मैंने थर्ड पे लगा दिया, या फिर मैंने फोर्थ पे लगा दिया, ये सब सेम है, ये सब सेम तो नहीं है, इन सबका स्ट्रक्चर अलग हो गया। बिकॉज अभी इसका सबका स्ट्रक्चर अलग हो गया, तो इनका नेम भी अलग होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग तो प्रॉपर्टीज भी अलग। सो आई कांट गिव द सेम नेम टू ऑल ऑफ देम। इसको भी मैं ब्रोमोब्यूटेन नहीं बोल सकता, इसको भी ब्रोमोब्यूटेन, इसको भी सबको ब्रोमोब्यूटेन नहीं बोल सकता। सो अभी इसको कैसे सॉल्व करें? वन इजी वे टू सॉल्व दिस इज नंबर दे दो, ओके। सो मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूंगा, 1 2 3 4, ओके। सो मैंने राइट साइड से काउंट करना शुरू किया, यू कैन ऑल्सो काउंट इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, डज नॉट मैटर फॉर नाउ, ओके। सो अगर मैंने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4, ओके, तो फिर I can give the name as this is 1 bromobutane, this is my 2 bromobutane, this is my 3 bromobutane, this is my 4 bromobutane, right? Problem solved, right? But if you noticed one more thing, so if you see these two molecules very carefully, यहाँ पे there's the bromine is attached to the first carbon atom, and here also it is attached to the first or the last carbon atom, okay. So if you see this molecule from below, तुम्हें bromine right side में दिखेगा, but if you see this molecule from above, तो तुम्हें bromine left side में दिखेगा, isn't it? I'm repeating myself. अगर इस मॉलिक्यूल को अगर तुम लोग नीचे से देख रहे हो, यू विल फाइंड दैट ब्रोमीन इज टू योर राइट साइड, इजंट इट? पर अगर तुम लोग ऊपर से देख रहे हो, यहां से तुम लोग इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, तो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे ब्रोमीन आ रहा है। सो इन अ वे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डिपेंड करता है तुम नीचे से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो। नीचे ऊपर से देखो तो ये सेम ही लगेगा, ओके। सिमिलरली दीज टू मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, अगर तुमने इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देख लिया, then you will find it will look like this molecule, okay. I'm repeating myself. अगर तुम लोग ने इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखा तो तुम्हें ये मॉलिक्यूल दिख जाएगा। So it's just a matter of fact कि ऊपर से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो। अगर नीचे से देख रहे हो तो ये तुम्हारा राइट है, बट अगर ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हारा राइट इस तरफ आ जाता है, okay. If you all can see my hand gestures, okay. तो अगर तुम लोग नीचे से देख रहे हो ऊपर कहीं पे, तो तुम लोग राइट साइड कहाँ पे, यहाँ पे, राइट, राइट साइड यहाँ पे आ गया। और अगर तुम लोग ऊपर से कुछ देख रहे हो तो राइट साइड कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। सो नीचे से देखो तो राइट साइड यहाँ पे है, ऊपर से देखो तो राइट साइड यहाँ पे है। सो इट डिपेंड्स तुम ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल आर द सेम, एंड दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल आर द सेम। तो मैं इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को आई कॉल एज 1 ब्रोमोब्यूटेन। इट डिपेंड्स तुम लोग कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो। अगर राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट किया तो ये तुम लोग के फर्स्ट कार्बन एटम पे आ गया। लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट किया तो ये तुम्हारे राइट साइड से अगर तुम लोग ने काउंटिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। एंड अगर तुमने यहाँ से लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी 1 से फर्स्ट कार्बन एटम पे आएगा, ओके। सो ऑलवेज नंबर द कार्बन एटम जिससे तुम लोग का नंबर सबसे छोटा हो जाए, ओके। मैं इसको दोनों को मैं 4 ब्रोमोब्यूटेन भी बोल सकता हूँ, राइट। इफ आई से दिस 1 2 3 4, तो इसको मैं 4 ब्रोमोब्यूटेन बोल सकता हूँ, इसको भी 1 2 3 4, इसको भी 4 ब्रोमोब्यूटेन बोल सकता हूँ। बट हम लोग काउंटिंग वैसे करेंगे जिस तरीके से जिससे हम लोग का नंबर सबसे छोटा हो जाए। अगेन ये किसने रूल बनाया? ये रूल बनाया आईयूपैक ने, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक ही सेम सिस्टम every scientist will follow, okay. So we'll number the
कार्बन एटम्स लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, so that the number comes the smallest number. Okay, एंड ये कभी यूज करना पड़ेगा जब तुम्हारे बहुत सारे कार्बन एटम्स है. ओके, so now you all can appreciate the fourth and the fifth step, sorry, third and the fourth step. What is the third step? Count the number of carbon atoms in the longest chain. सबसे लंबा जो चेन है कार्बन एटम का, उसमें कितने कार्बन एटम्स है काउंट कर लो. देन चूज द डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग. लेफ्ट से काउंट करोगे या राइट से काउंट करोगे, वो तुम लोग को चूज करना है. और कौन सा वाला चूज करोगे जिससे तुम लोग का जो फंक्शनल ग्रुप का नंबर है सबसे छोटा नंबर आ जाए, वैसा वाला तुम लोग डायरेक्शन चूज करोगे. ओके, एंड दिस इज जनरली यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 कार्बन एटम्स. ओके, 2 कार्बन एटम से ज्यादा होते हैं तब जाके जनरली ये यूज करना पड़ता है, वरना ये यूज नहीं करना पड़ता. ओके, एंड देन वंस यू put the number in front of the functional group, then you can write the final name. So these are the 4 steps to write the IUPAC name for any compound. Okay, now let's start seeing examples. Okay, this is a table given in your textbook, and what I will do is, so यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे common name दिया है. तो पहले जब IUPAC ने नॉमेनक्लेचर के रूल्स सेट नहीं किए थे तब साइंटिस्ट अपने मन से कुछ भी नाम दे रहे. ओके, इसको मिथाइल अल्कोहल बोल दिया, इसको एसिटाल्डिहाइड बोल दिया, इसको एसीटोन बोल दिया, इसको इथाइल मिथाइल कीटोन बोल दिया, कुछ भी नाम दे रहे हैं रैंडमली. ओके, बट फिर बाद में आयुपैक नेमिंग सिस्टम आ गया और सबका एक फिक्स नेम हो गया. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख के यू हैव टू पुट द आयुपैक नेम. ओके, आई विल सॉल्व द 8th and the 9th question for you, and the remaining ones you all can solve. Okay, so the first one is this. Okay, I won't look at the common name because I'm not interested in the common name. I will just start looking at the structural formula. My first step is to identify the parent name. Parent name identify करने के लिए मैं क्या करूंगा, I will count the number of carbon atoms. So 1 2 3 4. So methane, ethane, propane, butane. तो 4 कार्बन एटम्स वाला पेरेंट नेम क्या होता है, ब्यूटेन. सो ये मेरा पेरेंट नेम आ गया ब्यूटेन. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CO. CO इज कीटोन, राइट. सो मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन, एंड उसके लिए कौन सा सफिक्स ऐड करना पड़ता है, ओन. ओन तुम्हें एंड में ऐड करना है. सो ई को कट कर दो और ओन लगा दो. सो ब्यूटेन में ई कट करके ओन लगा दिया, तो व्हाट यू विल गेट इज ब्यूटेनॉन. ओके, नाउ द नंबरिंग पार्ट नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज द नंबरिंग, राइट. सो यहाँ पे 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से काउंट किया तो सेकंड नंबर पे आ रहा है कीटोन. अभी राइट साइड से काउंट करते. ओके, 1 2 3 4 अभी 3 नंबर पे आया. लेफ्ट साइड से काउंट किया तो 2 नंबर पे आया, राइट साइड से काउंट किया तो 3 नंबर पे आया. तो कौन सा लेंगे हम लोग लेफ्ट साइड से लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा छोटा नंबर चाहिए, राइट. सो यू विल टेक द नंबर 2. बट what is the structure of ketone? Structure of ketone is this, right. लेफ्ट साइड में एक सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में एक सिंगल बॉन्ड. सो वो एकदम एक्सट्रीम एंड में नहीं आ सकता, उसको बीच में आना पड़ेगा, 2 कार्बन एटम के बीच में आना पड़ेगा उसको, राइट. सो इट ऑलवेज हैज टू कम बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. सो या तो ये इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में आ सकता है, या तो इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में आ सकता है, राइट. सो उसका जो दूसरा ऑप्शन है, अगर समझो ये कार्बन CO कीटोन यहां से निकाल के अगर इन 2 कार्बन एटम्स में डाल दिया, फिर भी वो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है. सो लेफ्ट साइड पे अगर कीटोन डाला होगा तो फिर भी सेकंड नंबर पे आ जाए, राइट साइड पे अगर कीटोन डाला होता फिर भी सेकंड नंबर ही आ रहा है. सो नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर पे आ रहा है, तो इसके अलग अलग और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं. नीचे से देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ऊपर से देखोगे और इस कीटोन को राइट साइड में डाला तो दे आर गोइंग टू लुक द सेम. ओके, सो इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं हो सकता. सो यू नीड नॉट पुट द number over here. Okay, you can directly write the final IUPAC name as butanol. So that's your 8th question. 9th question. 9th question के लिए again you'll start counting the number of carbon atoms parent name के लिए. So 1 2 ये NH2 है, so carbon atom नहीं, you will only count the carbon atom. So 1 2 2 carbon atoms है, so methane ethane, so parent name हो गया ethane. Next functional group क्या है, NH2. NH2 is amine, और amine के लिए एमाइन ही सफिक्स ऐड हो जाता है. सो कट ई एंड पुट अमाइन, सो इथेन अमाइन हो गया तुम लोग का नेम. नो या तो राइट साइड पे लग सकते हैं या तो लेफ्ट साइड में लग सकते हैं. तो राइट साइड से लगेगा फिर भी वो इथेन 1 अमाइन हो जाएगा, लेफ्ट साइड से लगेगा फिर भी इथेन 1 अमाइन हो जाएगा. ओके, तुम राइट साइड पे लगा दो तो हम राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड पे लगा दो तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे. दोनों में नंबर 1 पे आ जाएगा अमाइन, राइट. सो दोनों में नंबर 1 पे आ जाएगा तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई और ऑप्शन है नहीं. So directly write the final answer as ethanamine. Okay,
So I've solved the 8th one and the 9th one for you all. The remaining sums you all solve by yourself. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and try by yourself. And I'm one thing again I'm telling you, if you're do not try it by yourself, खुद से अगर लिखना, you won't practice right now. You just blindly copy in your notebook all the answers. You won't be able to solve the answer or write the names in the exam. Okay, abhi ki abhi try kar lo. Try writing the names of all these structural formulas and understand where you are making mistakes so that you can correct those mistakes right now before you end watching this learning session. Okay, so make sure you're trying it by yourself. It's okay if it is wrong. You'll understand where you're going wrong. Okay, and you will improve. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and complete this table in your textbook. Okay, I hope you have tried to solve or tried to write IUPAC names for all the remaining structural formulas. Okay, it's okay if it's wrong, or it's okay if you tried but you could not. Now we're going to discuss the answers. Okay, the first one is नॉर्मल ईथीन. यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है 1 2, सो मीथेन इथेन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया तो इन हो जाएगा, सो मीथीन. सो द फर्स्ट वन इज मीथीन, सॉरी ईथीन. दो कार्बन एटम्स है, राइट, मीथेन इथेन. सो because there are two carbon atoms, the parent name is ethane, and because of the double bond, you will call it as ene. So ethene. Second one, again two carbon atoms, so methane ethane, right. दो कार्बन एटम्स के लिए हम लोग हमेशा पेरेंट नेम यूज करते हैं ethane. The triple bond, जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, you end it with ine, so ethine will be the answer for second one. Next, COOH. COOH is carboxylic acid, and how many carbon atoms do you have? You have two carbon atoms, so methane ethane. So this will be ethanoic acid, right. Carboxylic acid के लिए oic acid add कर देते हैं. Next, there's only one carbon atom यानी मीथेन. Okay, so मीथेन पे क्या ऐड किया है? OH. OH is alcohol. Alcohol के लिए OL ऐड कर देते हैं, so methanol. Always मीथेन में से E कट कर दो, OL ऐड कर दो. Okay, so methanol. अगेन यहाँ पे नंबर्स क्यों नहीं आ रहे? नंबर्स तभी आते हैं जब बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है फॉर एग्जांपल, तो लेफ्ट साइड से लगाओ राइट साइड से लगाओ, नंबर तो 1 ही आने वाला है, सो यू नीड नॉट राइट द नंबर. ओके, जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे तभी नंबर्स आएंगे. ओके, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के नंबर्स नहीं आते जनरली. ओके, नेक्स्ट, मीथेन इथेन. सो देयर टू कार्बन एटम्स, सो मीथेन इथेन. सो पेरेंट नेम हो गया इथेन, यहाँ पे OH ऐड हो गया तो ऑल. ओके, OH is alcohol, alcohol के लिए OL ऐड हो जाता है, so methane ethane ethanol. Ethanol will be its IUPAC name. यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? दो, so दो is methane ethane. Ethane is the parent name. CHO, what is CHO? CHO is aldehyde, and aldehyde के लिए AL ऐड हो जाता है, so this is ethanol. Parent was ethane, CHO is aldehyde जिसके लिए Al ऐड हो जाता है, तो ये ethanol हो गया. Okay, ethanol, ethanol, both of them are different. नेम काफी सिमिलर है, इथेनॉल इथेनॉल, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. यहाँ पे OH है अल्कोहल, यहाँ पे CHO है एल्डिहाइड. नेक्स्ट, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स. सो 3 कार्बन एटम्स क्या होते हैं? मीथेन इथेन प्रोपेन. सो पेरेंट नेम इज प्रोपेन. बीच में यहाँ पे क्या ऐड हो गया? CO. CO इज कीटोन, सो प्रोपेन प्लस कीटोन विल बिकम प्रोपेनॉन. ओके, प्रोपेन का E कट कर दो एंड ONE ऐड कर दो, प्रोपेनॉन. अगेन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बीच में ही आ सकता है वो. CO कैसा होता है? C नीचे ऊपर ऑक्सीजन एटम, सो लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड, सो उसको बीच में ही आना पड़ेगा. सो इसको इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ही आना पड़ेगा, सो देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो कोई नंबर नहीं आएगा. लास्ट वन, 1 2 3 3, ये Cl है, C नहीं है. ओके, C कार्बन के लिए सिर्फ C होगा, Cl इज क्लोरीन. सो 1 2 3, 3 कार्बन एटम, सो मीथेन इथेन प्रोपेन. पेरेंट नेम इज प्रोपेन, और कौन सा ऐड हुआ है? फंक्शनल ग्रुप Cl. Cl इज क्लोरीन, हैलोजन, क्लोरीन. सो क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स ऐड होता है, प्रीफिक्स यानी पेरेंट नेम के पहले. सो ये कौन सा होगा? क्लोरोप्रोपेन, राइट. मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स यानी प्रोपेन, सो दिस विल बी क्लोरोप्रोपेन. बट क्लोरीन अभी यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम पे भी लग सकता है, सेकंड कार्बन एटम में भी लग सकता है, राइट. सो अभी तुम्हें नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट पे लगा या सेकंड पे लगा, किस पे लगा, फर्स्ट पे लगा. सो द आंसर विल बी 1 क्लोरोप्रोपेन. सो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम्स थे, दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टेट द नंबर. ओके, कि फर्स्ट पे लगा, क्योंकि ये क्लोरीन सेकंड पे भी आ सकता है, तो अलग स्ट्रक्चर हो गया, अलग मॉलिक्यूल हो गया. So these are your answers for this table. Make sure you're copying this in your textbook itself. Okay.
you're going to move ahead. So again, there are some IUPAC names that you have to write for these structural formula. These questions are given at the end of your chapter on page number 134. Again, what we're going to do is, or what I am going to do is, I'm going to solve the second and the third one for you all, and the remaining sums you all will try by yourself. Okay. So second one, first step, count the number of carbon atoms. So 1, 2, 3 carbon atoms. So my parent name becomes propane. Next, figure out the functional group. कौन सा functional group है? OH, right? OH is alcohol, right? So alcohol के लिए OL ये word add हो जाता है as a suffix यानी end में. So E कट करके OL add कर लो, so propanol. Okay. So OH इस वाले कार्बन एटम पे भी आ सकता है, इस वाले कार्बन एटम पे भी आ सकता है. इस वाले कार्बन एटम पे आ गया तो ये फर्स्ट कार्बन एटम पे आएगा, इस वाले कार्बन एटम पे तो ये सेकंड कार्बन एटम पे आएगा. सो लेट टू स्पेसिफाई द नेम, स्पेसिफाई द नंबर. फर्स्ट कार्बन एटम पे है क्या? नहीं. सेकंड कार्बन एटम पे है क्या? यस. राइट से काउंट करोगे, लेफ्ट साइड से, राइट से काउंट करोगे तो 1 2 3 सेकंड वाले पे आया. लेफ्ट से काउंट करोगे तो भी 1 2 3 फिर भी सेकंड वाले पे ही आ रहा है. सो राइट से काउंट करो, लेफ्ट से काउंट करो, सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा है. सो योर नेमिंग विल बी प्रोपेन 2 ऑल. ओके, ये जो ऑल है अल्कोहल है, ये सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा है, इसलिए हम लोग ने 2 लिख दिया. नेक्स्ट, the third one, how many carbon atoms? 1 2 3. So the parent atom will be methane, ethane, propane. So propane, okay, before that this was the final answer. Okay, so इसके लिए propane is the parent name. Next, कौन सा functional group है? COH. COH is carboxylic acid. So functional group is carboxylic acid, जिसके लिए oic acid suffix के लिए add होता है. E कट कर दो, oic acid डाल दो. Okay, now COH या तो यहाँ पे हो सकता है on this carbon atom, or it can be on this carbon atom. Okay, कहीं से भी तुम ऐड कर दो, it will always be on the first carbon atom, right? कहीं से भी ऐड कर दो, it will always be on the first carbon atom. So there's no need to write your number over here. You will just write propanoic acid. Okay. Next, yes, so I have solved the second and the third sum for you. Now you have to solve the remaining sums by yourself. Okay, write the names using IUPAC nomenclature by yourself, and then we can discuss the answers. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to solve your give the names by yourself. Okay. Okay, I hope you have tried. It's okay if you've got it wrong. It's okay if you were not able to write the names, but unless as long as you tried it, and now when you see the answer and you figure out why you did not get the name correctly, you are learning something. Okay, so first step is parent name you have to find out, right? So count the number of carbon atoms. 1 2 3 4 carbon atoms. So parent name हो गया propane. What's the functional group? There's no functional group. Okay, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, CH2, CH3, कोई functional group है ही नहीं. So directly तुम्हारा नाम alkene हो जाएगा, propane. Ethane, ethane, propane, butane. Sorry, there are 4 carbon atoms. So 4 carbon atoms के लिए parent name हो जाएगा butane. Methane, ethane, propane, butane. Okay. So first one is butane. कोई भी functional group नहीं था तो directly alkene का नाम लिख दोगे तुम लोग. Okay. Now the fourth one. How many carbon atoms? 1 2 carbon atoms is methane, ethane. So parent name हो गया ethane. Next, what is the functional group? NH2 is amine. So ethane का E कट करके amine add कर लो. So ethanamine will be the answer. Next, how many carbon atoms? Methane, ethane. 2 carbon atoms है. 1 2. So the parent name becomes again ethane. Ethane के बाद what's the functional group? CHO. What is CHO? CHO is aldehyde. So ethane का E कट करके Al add कर दो. So this is ethanol. Ethane plus aldehyde. Last one, count the number of carbon atoms. 1 2 3 4 carbon atoms यानी methane, ethane, propane, butane. Parent name is butane. Next, what is the functional group? CO. CO is ketone, right? So ketone you have added. Now again ketone बीच में आता है, right? उसके लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसको 2 कार्बन एटम्स के बीच में आना पड़ेगा.
सो या तो इन दो कार्बन एटम्स के बीच में आ सकता है या तो इन दो कार्बन एटम्स के बीच में आ सकता है। कहीं से भी कोई भी कार्बन एटम्स के बीच में आ जाए उसका नंबर हमेशा 2 रहेगा। ओके, लेफ्ट साइड से काउंट करोगे यहाँ पे तो 2 नंबर आ जाएगा, एंड अगर इस CO को यहाँ पे डाल दोगे एंड राइट साइड से काउंट करोगे फिर भी नंबर 2 आ जाएगा, राइट, कीटोन पे। सो नीड नॉट पुट द नंबर। सो 4 यानी पेरेंट नेम ब्यूटेन प्लस कीटोन, so butanone. Okay, the answer will be butanone. So just check your answers and copy the correct answers in your notebooks. I hope by now y'all are y'all will be able to write the nomenclature or IUPAC names of any structural formula that I give you. Okay, if you're still not clear, if you're still not feeling confident, again go and solve these questions. Okay, where are these questions? Yeah, try to solve these questions by yourself. Don't look at the answers. Copy all the structural formula in your notebooks and try to write the answers by yourself using the steps I've given you. Once you're done this, you can also practice these questions. Okay, write this 6 structural formula in your notebook. Don't see the answers and try to write the names by yourself using the steps I've given you all. Okay, and with more and more practice, you should become better and better. Now, last activity for the day, I think, is this. Okay, again, end of chapter question. Now we are doing ulta. Okay, once you're able to write the names correctly, नेम में से स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी हो जाता है. ओके, द हार्ड पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. इफ यू अंडरस्टूड आयुपैक नेम्स कैसे लिखना है, तो अभी आयुपैक नेम्स में से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना बहुत इजी हो जाता है. ओके, ट्रस्ट मी, इट बिकम्स वेरी इजी. So for these questions, there are 8 questions. I'll solve the first 2 for you all. Okay, I'll solve the first 2 for you all. These are the steps. So first you draw the parent alkane, alkene or alkyne. Again, alkene, alkyne, it will be rarely alkene or alkyne. Okay, 99% of the sums it will be alkenes. Okay, so पहले उसको draw कर लो, alkene, alkene, alkyne जो है parent वाला. Then number the longest carbon chain. या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से सबसे लंबा जो कार्बन चेन है उसको नंबर्स दे दो. ओके, एंड लास्टली जो नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है उस नंबर के कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देना. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, पेंटन 2 ऑन. ओके, पेंटन 2 ऑन, पेंटेन है तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द पेरेंट एल्कीन. सो पेंटेन के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. पेंटेन यानी 5 कार्बन एटम. सो 5 कार्बन एटम वाला एल्कीन पहले ड्रॉ कर दो. सो मैंने कर दिया. ओके, लास्ट में एंड में हमेशा CH3 होगा क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H होना चाहिए. एंड में हमेशा CH3, बीच में हमेशा CH2 होता है. ओके, सो पेंटेन ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट स्टेप वाज टू नंबर द कार्बन एटम्स. कहीं से भी नंबर कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ओके, देन ओन है, ओन यानी कीटोन. राइट, कीटोन किस पे है, सेकंड कार्बन एटम है, तो सेकंड कार्बन एटम पे जब पे तुम कीटोन डाल दो, कीटोन इज CO, राइट. सो इंस्टेड ऑफ CH2 ओवर हियर पुट कीटोन. एंड अगेन मेक श्योर कि कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है. यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट साइड से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. सो कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्सीजन ऑलवेज नीड्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स which it is getting from this carbon. Okay, so this is your final answer. Pentan 2 on is this. So it's very simple, right? अगर तुम्हें स्ट्रक्चर में से नेम लिखने आ गया तो नेम में से स्ट्रक्चर लिखना इज मच मोर इजियर. ओके, लेट अस डू वन मोर. 2 chlorobutane. So पहले ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ब्यूटेन यानी 4 कार्बन एटम्स. सो फर्स्ट ड्रॉ ब्यूटेन. सो आई ड्रॉन ब्यूटेन हियर. एंड में CH3 होगा और बीच में CH2 होगा. ओके, नेक्स्ट नंबर द कार्बन चेन. सो पहले नंबर कर दिया 1 2 3 4. नेक्स्ट सेकेंड कार्बन एटम पे मुझे क्लोरीन ऐड करना है. तो जब मैं सेकेंड कार्बन एटम पे क्लोरीन ऐड करूंगा तो मुझे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा. अगर मैंने यहाँ पे CH2 ही रखा होता, ओके, CH2 रखा होता तो लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और राइट साइड से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. राइट, यहाँ पे इस कार्बन एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. सो अभी उसको सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए. राइट, तो एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए. इफ यू पुट H2 ओवर हियर तो इस कार्बन एटम को 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, विच कैन नॉट हैपन. कार्बन ओनली वांट्स 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे अगर तुम क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो एक हाइड्रोजन को तुम्हें कम करना पड़ेगा. ओके, दैट्स यू हैव टू टेक केयर. और डू हैव टू टेक केयर कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है. ओके, सो अगर कार्बन को एक क्लोरीन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा. एंड वी हैड सीन इन द लास्ट लर्निंग सेशन, राइट, एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग जनरली एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं. सो सेकंड कार्बन एटम पे हम लोग ने क्लोरीन ऐड कर दिया. सो दैट इज योर आंसर टू द second question. Okay, so this is your final answer.
Now I think we have done first and second one. The remaining 6 sums you all can try by yourself. Again, what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here, try solving the remaining 6 questions, and then we will discuss the answers. Okay. Okay, I hope you have tried solving the remaining 6 questions. Again, I'm telling you, it's okay if you all tried but could not get the correct answer, or you all were not able to draw the structure correctly. Now, when I show you all the answer, you all can check where you made the mistake, and then you are going to improve yourself, and hopefully in the exam you'll be able to do it correctly. Okay, so I'm just going to show you all the answers at the same time. So these are the answers. प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन के लिए 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तो C1 2 3 3 कार्बन एटम्स, 2 पे OL, OL यानी अल्कोहल, सो 2 पे अल्कोहल डाल दिया. नेक्स्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल यानी एक ही कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम है. आल, आल यानी aldehyde, aldehyde is CHO, so you'll have to take out how many 3 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन एटम निकाल के CHO डाल दो. सो दिस इज योर मिथेनॉल. ओके, I don't know what's happening with the dogs in the background. I don't know what's troubling them, but I can't help it. Okay. नेक्स्ट ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन यानी 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन एटम्स, सो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स. तो ब्यूटेनोइक एसिड यानी COOH ऐड करना है, सो यहाँ पे लास्ट कार्बन एटम पे COH ऐड कर लिया. यहाँ पे तुम लोग COH ऐड कर दो या फिर यहाँ पे ऐड कर दो, इट्स द सेम. ओके, इट डज नॉट मैटर, सो दैट्स ओके. यहाँ पे मैटर करते हैं, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे OH ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे OH ऐड नहीं कर सकते. यहाँ पे बोला कि 2 पे ही होना चाहिए वो, बट यहाँ पे यू कैन आइदर ऐड इट हियर एट द एंड और दिस एंड, बोथ ऑफ द एंड्स आर ओके. नेक्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन यानी मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स, सो 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड फर्स्ट कार्बन एटम पे ब्रोमीन, सो यहाँ पे ब्रोमीन डाल दो या फिर यहाँ पे डाल दो, इट्स ओके. यहाँ पे ब्रोमीन डाला तो लेफ्ट साइड राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन डाले तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. इथेन अमाइन, इथेन मीथेन इथेन यानी 2 कार्बन एटम्स, सो 1 2 कार्बन एटम्स एंड एंड में एक अमाइन डाल दो, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में डज नॉट मैटर. लास्ट ब्यूटेनॉन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन एटम्स, सो 1 2 3 4 एंड ब्यूटेन को बीच में ही डालना पड़ेगा, 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो या तो इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डाल दो कीटोन को, या फिर इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में कीटोन को डाल दो, बोथ ऑफ देम विल बी द सेम. Okay, so these are your final answers. Check your final answers, see where you made mistakes, and now remember why you made those mistakes, and next time onwards do it correctly. Okay, that's it for this learning session. I hope you understood most of it, and if you haven't understood most of it, maybe you need more practice. Okay, so just check whether you have accomplished today's learning objective. The first one was students will be able to write names of carbon compounds using IUPAC nomenclature. Okay, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया तो स्ट्रक्चर के ऊपर से तुम्हें उसका नाम लिखना आना चाहिए यूजिंग IUPAC रूल्स. ओके, और उसका उल्टा, अगर तुम्हें IUPAC का नेम पता है, will you be able to write the structural formula. Okay, the second one is mostly easy, the first one needs a little more practice, so make sure you're practicing a lot. अगर तुम लोगों ने आज के वीडियो में ही जब मैं बोल रहा था खुद से ट्राई करो, then we discuss the answers, if you did it very sincerely, you all should have accomplished both the objectives easily. So it just depends whether you actually sincerely tried to write the names by yourself, and then did you check, and then you improved or enhanced your understanding. If you did that, I think you should be okay. Okay, that's it for this learning session. I hope you understood. I hope you also enjoyed. I find this a lot of fun. Okay, मुझे IUPAC का nomenclature यूज करके नाम लिखना और स्ट्रक्चर बनाना काफी मजेदार लगता है. I think it's a lot of fun. I hope you also had fun. I hope you also have fun when you practice these kind of sums. Okay, so that's it for this learning session. See you all in the next one. Till then, bye and peace.